डन? आइए प्रिया जी यहाँ पर आ जाओ. Ready? Ready? Yes. Ready, rolling? Okay, Priya, first of all, congratulations. 3am Thoughts के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की बुक है और हाँ जी क्या है 3am Thoughts? हाँ जी तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया असवानी है एंड दिस इज़ माय बुक 3am थॉट्स टर्निंग इनटू फॉरएवर डेफिनेशन. 3am थॉट्स एक सेल्फ हेल्प बुक है दैट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग योर नेगेटिव थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वन. इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारे थॉट्स हमें आते हैं, अराउंड 10,000 थॉट्स पर डे. उसमें से 80% ऑफ थॉट्स नेगेटिव रहता है, विच इज़ वाई यू माइट फील लाइक आपको एक चीज़ करनी नहीं है. योर एक्शंस विल पोर्ट्रे दैट, एंड जब भी आपके एक्शंस वो पोर्ट्रे करता है यू कैन नॉट फुली ग्रो. तो इसीलिए आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपको रोकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनफ या बैड थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू मी, ऐसे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रोसेसेस जैसे कि माइंडफुल थिंकिंग, कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स, जो इस बुक में कवर्ड है. इसके साथ और बहुत सारे प्रोसेसेस है जो हेल्प करते हैं हमें टू ट्रांसफॉर्म आर नेगेटिव थॉट्स, आर बाइंडिंग थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वंस that actually help you grow and unleash your true potential. Because when you transform your negative thoughts, आपका दिमाग is more clear and you are at peace with your own self, and your actions will always portray that. So this book transforms your negative thoughts into empowering ones. So I would say define your thoughts correctly so that in life everything correct happens to you. Thank you so much. Who inspires you to write this book and tell us about your experiences? एक सेकंड के लिए कट करना. Okay, So this book I've written a year ago, and the publishing process took half a year. But when I was writing this book, I actually had to go through my schooling as well. I just cleared my 12th grade. And when I was writing this book, there were a lot of negative thoughts that even I had, which I transformed during the writing process, so that when I write, I can truly write about my true emotions in this book. And whenever I was writing these thoughts, it was inspiring that if I can transform my negative and binding thoughts, why can't everyone else who gets a chance to read this book? So when I started this journey, it was after I had completed my life coaching education. And when I completed it, it made me realize that a lot of people can face through these barriers in our lives which actually stop you. So when you transform your negative thoughts, it can actually help you grow to an extreme where you wouldn't realize that you could have done this as well, which is what inspired me the most. Right. Also, after COVID, there are so many people who are in depression. Correct. We have seen so many suicides. So, public will connect with this book? Definitely, because I think the writer writes the best when they're writing true emotions that they're feeling. I could obviously pen down anything in the world, but if I do not connect with it, then my writing would not portray that. But in this book, I've written what I've truly felt and conveyed all the emotions such as anxiety, depression, sad. I'm feeling so sad that you cannot actually control the way you think, which is why I think this book can connect to a lot of the youth. And with the youth, everyone who's actually trying to mold themselves, you can mold yourself correctly and define your thoughts accurately. We have seen so many films made on books. Correct. So any plans to do a film on this book? Currently, I'm planning to continue my undergraduation at Syracuse University. So, continuing this book will be in future, but currently there are plans to actually continue the writing journey. And then if the future holds it, this book shall convert into... After this, any other thoughts in your mind, if you can tell us about that, if you're planning to write another book? Correct. I think when I start my undergraduation, we should definitely have, I would, as an undergraduate student, would have a lot of binding thoughts that will be formed then. So if then for sure, if I feel like these thoughts could connect with the public really well, then I will for sure plan to continue writing a 3am Thoughts book. Right. Also, any message you would like to convey to audience who will read this book in future?
Correct. So if you have thoughts that are binding you, that are stopping you to grow and unleash your true self, I would say reading this book with the mind to change and the aim to actually develop will actually help you to use these processes really well and adapt with them. Because if you don't have change in your mind, if you don't plan to change, then a self-help book or any rather book cannot help you grow. So I would say have the dream to change and evolve so that you can actually adapt to this book. Thank you. Thank you, Priya. Thank you so and all much. the best. Thank you. Done? Done? Thank you. Thank you, guys. Okay, निकिता जी, सबसे पहले 3am Thoughts बुक के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की बुक है और क्या कुछ कहना चाहेंगे बुक के बारे में? See, I'm very super excited about this 3am book, and this is very different concept. I seems like. So मुझे लगता है कि बहुत सारी मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, बट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट 3am थॉट्स. आप लोग भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, कभी आँख खुल जाती है 2-3 बजे, देन क्या क्या ख्याल आते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. कुछ लोगों को ऐसे ख्याल आएंगे कि अरे थोड़ा सा और सो जाते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव ख्याल आएंगे, कुछ लोगों को पॉजिटिव ख्याल आएंगे. मुझे लगता है दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग टू यू नो रीड. और मुझे लगता है कि एक दूसरे को पूछने में भी अगर हमें मज़ा आ जाएगा कि तुम क्या सोचते हो 3 बजे, यू नो. सो इट्स ब्यूटीफुल थॉट्स. तो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि आपके 3am Thoughts क्या हैं? मेरे 3am थॉट्स ये हैं कि जब मैं 3am को कभी मेरी आँख खुल जाती है तो डिपेंड करता है. अगर मैं पूरी रात जाकर पार्टी कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और पार्टी करूँ. अगर मैं थोड़ी देर पहले सोई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और थोड़ा सो जाऊँ. और अगर मैं काम पर हूँ और मैं फोकस कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फोकस. और अमूमन जो मुझे लगता है हमेशा 3am को क्योंकि वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करना, पॉजिटिव थॉट्स लेना और एनर्जी लेना, आई थिंक ये मेरे थॉट्स होते हैं. ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन की बातें भी की गई है इस बुक के अंदर, और प्रिया खुद एक यूथ है, तो कितना कनेक्ट करेंगे जो स्पेशली यूथ जो है. उसके बाद कोविड के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए, तो कितना कनेक्ट करेंगे? आई थिंक ऑडियंस, मुझे लगता है कि सारी ऑडियंस इसे कनेक्ट कर पाएगी. बिकॉज ये बहुत सारे लोग 3am को जागते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं या कोई डिप्रेसिंग वाली फीलिंग आती है उनमें. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे. आप लोग भी काफ़ी होंगे, आप लोगों को भी सेम थॉट्स आते होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव. बहुत ज़्यादातर मुझे लगता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो काम में परेशान होते हैं या हेल्थ वाइज ख़राब होते हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं. तो मुझे लगता है डिप्रेसिव, इसमें इतनी पॉजिटिविटी है तो आई थिंक डिप्रेसिव होगा तो लोग पॉजिटिव हो सकते हैं. सो आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो अगर आप शेयर करना चाहें? इसके अलावा 8 डेज़ के बाद मेरा म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ है और उसके बाद सीरीज़ रिलीज़ है. तो 8 दिन के बाद आपने जितना शायद दिल को प्यार दिया है उतना ही गैर चुन लिया को देना. सो अभी 8 दिन के बाद रिलीज़ हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आस्था जी, सबसे पहले 3am Thoughts जो बुक है उसके बारे में कुछ बताइए. बुक जो है डिप्रेशन के बारे में बात करती है. आपका जो आस्था फाउंडेशन है वो भी बहुत अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, तो कितना कनेक्ट करेंगे आप इस चीज़ से? सो ये जो बुक है, बिकॉज कोविड और बहुत सारी लाइफ, मतलब अभी हम सडन सोशल मीडिया से हम यू नो हमारी थॉट्स सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई. हर कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ ये कर जाऊँ, मैं कुछ वो कर जाऊँ, और वो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको मतलब ओवर थिंकिंग देती है, जिसकी वजह से आप यू नो मेजॉरिटी लोग, मतलब 90% ऑफ यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाने लगा है. एंड देन दे आर इनटू ड्रग्स एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि यू नो बहुत बुरे नशे में और इन सब में वो फंसते जा रहे हैं. सो येस, 3am थॉट इज़ समथिंग, वो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होती है. ये इंसान की थॉट पे भी डिपेंड होती है कि वो किस हिसाब से जाए, वो उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले. बट मेरे ख्याल से रात का थॉट मतलब 90% नेगेटिव ही होता है. वो आप सारे आपको खुद की पर्सनल वो फीलिंग होगी. सो येस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और मैं चाह रही हूँ कि आप जो भी ये सुन रहा है या ये जो बुक पढ़ेगा, सारे पढ़ो एंड
पॉजिटिविटी अपने में हमेशा ही रखो. आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा स्पेशली पॉजिटिविटी के लिए? यस, जैसे हम आस्था फाउंडेशन में भी सारी चीज़ें हर एक को और ये एक अलग सेक्शन हमने रखा है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और इन सब में जाते हैं उनको स्पेशली वर्कआउट करो, अपने आप को कहीं बिजी रखो या कुछ पॉजिटिव रहो. ओके, सो आई विल ऑफ कोर्स टेल एवरीवन के बहुत पॉजिटिव रहो और एवरीवन गो टू जिम और enjoy, put your time there. Okay, but मैं और एक important बात, हाँ प्लीज टेल मी. Ma'am, as you told inside that you are a reader. Yes. So may I know what book you are reading right now? Which book are you? Okay, right now I am चलो ठीक है. So right now I am reading India's Greatest Mind. So that is going right now with me and it's amazing. So मुझे मतलब ऑन थॉट्स एंड स्पेशली हम इंडियंस जितने भी ऑथर्स हैं मुझे उनकी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. मैं उनकी नॉवेल ज़्यादा प्रीफर करती हूँ देन एनीवन एल्स आउट ऑफ मुंबई या आउट ऑफ इंडिया, सॉरी. सो लाइक दैट आई प्रीफर कि भाई हमारे देसी लोगों की पढ़ो, सेम सोच रहेगी और काफ़ी आप कनेक्ट कर पाओगे उस सोच से. ओके, थैंक यू सो मच.